بہت بہت میں خوش آمدید کہوں گا. ہماری سادگی جو ہے وہ ہمیں اکثر لے کے ڈوب جاتی ہے. آج جس موضوع پر بات چیت ہے ہماری، اس سے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھے کہ کوئی سیاسی پہلو ہے اس کا، تو قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے. اور جب آپ یہ 8-10 منٹ کی بات چیت سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس میں واقعی کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا، اور نہ ہی کسی سیاستدان یا کسی لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات چیت ہم نے کی. ہم موضوع جو ہے اس سے کسی ایک سیاستدان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ الگ بات ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب بات یہ ہے دراصل کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 20-25-50-100 سال کے بعد جب دنیا کی تاریخ کوئی مورخ لکھے گا تو یہ ایک جملہ جو ہے یہ سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ آپ نے پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کی زبان سے سنا ہے، یہ وجہ نہیں ہے. ہاں، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اور جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو بہت سے لوگوں نے اسے پسند بھی کیا، اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے اس کے مذاق بھی اڑائے، اس کے لطیفے بھی بنے، اس کے بارے میں ویڈیوز بھی بنی، ٹک ٹاک جو بھی ہے بنے، بہت ساری چیزیں بنی. اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں نے اس جملے کو کیوں پسند کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے، یہ جب آپ میری بات چیت سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک لفظ ہے سائیکوسس. یہ ذہنی بیماری ہے. اگر اس کا ہم اردو میں ترجمہ ڈھونڈنے جائیں تو ہمیں نہیں ملتا. اس میں اردو زبان میں اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے. سائیکوسس جو بیماری ہے، ذہنی بیماری، اگر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے دماغی عارضہ یا ذہنی بیماری، جبکہ ذہنی بیماریاں تو کئی ہو سکتی ہیں، تو آسانی کے لیے انہوں نے اس کو اس خانے میں ڈال دیا ہے. مگر سائیکوسس کا اصل ترجمہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی ہماری زبان میں موجود ہے. اب انگریزوں نے یا جو میڈیکل کے جو ایکسپرٹ ہیں مینٹل ہیلتھ کے، جو یورپ امریکہ میں ہیں، انہوں نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ بتائی ہے کہ کسی انسان کا تعلق حقیقت سے یا حقیقی چیزوں سے منقطع ہو جائے، اس سچویشن کو سائیکوسس کہتے ہیں. یعنی یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ایسی آوازیں سنتا ہے یا ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. اسے سائیکوسس کہا جاتا ہے. یہ مستقل طور پر 24 گھنٹے یہ کنڈیشن نہیں رہتی، اس کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں. کسی کو دن میں 3-4 مرتبہ ہوگا، کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ ہوگا، ادروائز وہ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ایک ایپیسوڈ ان کو آتا ہے. تو اب اگر کسی ایک آدمی کو یہ بیماری ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے، اسے ہاسپٹل جانا پڑے گا، ڈاکٹر کو ملنا پڑے گا، سائیکو تھراپی ہوگی. لیکن اگر یہ سائیکوسس ایک ہجوم کو ہو جائے، پورے محلے کو ہو جائے، پورے شہر کو ہو جائے، پورے ملک کو ہو جائے، یا پوری دنیا کے لوگوں کو ہو جائے، تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اور یہ سائیکوسس یعنی کہ حقیقت سے ہم کٹ جائیں، یہ اس وقت ہو رہا ہے. آج کے اس دور میں، اس پینڈیمک میں، جو کورونا وائرس کووڈ-19 کا جو وائرس ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چاروں طرف سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ٹیلی ویژن ہو، سیاستدانوں کے بیان ہو، سائنٹسٹ جو ہیں ان کے بیان ہو، یا کچھ ایسے لوگ جو ان سائنٹیفک انفارمیشن سوشل میڈیا پر موجود ہے جو پیش کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کہ جن کا سائنس سے تعلق نہیں ہے، تو ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے جسے کہا جاتا ہے پوسیڈو سائنس. یعنی POSDU یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور سائنس جو ہے وہ بھی لاطینی زبان، یعنی یہ دونوں لفظ مل کر یہ بنتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا سائنسی کوئی وجود نہیں ہے، یعنی سائنٹیفک ایویڈنس کوئی شہادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مانی جا رہی ہیں ایسی چیزیں، یہ اس زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس کے بڑے خطرناک اثرات ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت ویکسین کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے خلاف بہت ساری چیزیں
और जब ये कोरोना इवन आया उस वक्त भी कई चीजें आई थी जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है कि ये 5G की वजह से हो रहा है, या ये किसी ने ऐसे ही जो है वो आदमी ने ये वायरस बना दिया है। कितनी चीजें आई, आज भी आ रही हैं, फिर वैक्सीन के हवाले से भी आती गई। दरअसल मामला ये होता है कि जब इस किस्म की चीजें आती हैं तो एक नई इस्तिलाह जो है उसने आज के दौर में जन्म लिया है, जिसका नाम है मास फॉर्मेशन साइकोसिस। अगर आप आज की तारीख उठाकर देखें तो ऐसा होता है कि गूगल जो है वो हर साल ये देखता है कि उसके जो सर्च इंजन पे दुनिया भर के लोगों ने सबसे ज्यादा किसको सर्च किया। अक्सर शख्सियात के मुकाबले में देखा जाता है, कभी आया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, या जगहों के मुकाबले में आता है कि भाई फलानी जगह जो है उसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया। तो आज की तारीख में जिस लफ्ज को सबसे ज्यादा सर्च इंजन पर सर्च किया जा रहा है इंटरनेट पर, और पूरी वेबसाइट्स और इंटरनेट जिस लफ्ज से गूंज रही है आज की दौर में इस वक्त भी, वो है मास फॉर्मेशन साइकोसिस का लफ्ज। ये डॉक्टर रॉबर्ट मेलन ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया है गुज़िश्ता 1 माह पहले अपने एक इंटरव्यू में, और उसके बाद जब उसने वो जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उसे बहुत सारे जो मीडिया के जो चैनल्स हैं उन्होंने उसे बैंड भी कर दिया। अब ये क्यों बैंड किया इसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहते, हम ये देखना चाहते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट मेलन ने जो ये इस्तिलाह इस्तेमाल की मास फॉर्मेशन साइकोसिस की, वो क्यों इस्तिलाह इसने इस्तेमाल की। उसका कहना यह है कि कोविड-19 की वजह से वैक्सीन, बूस्टर, कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस जिसमें मास्क है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, आइसोलेशन का टाइम है, ये तमाम चीजों की वजह से मास फॉर्मेशन साइकोसिस दुनिया में फैल गया है। यानी पूरी दुनिया जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो गई है, यानी एक आलमगीर बेचैनी की सूरत हाल है। और इसमें कोई शुबा नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, लोग इस हवाले से बेचैन और उलझन का शिकार हैं कि आखिर अब आगे होगा क्या। डॉक्टर रॉबर्ट मेलन का यह कहना है कि जब इस किस्म की फिजा कायम हो जाती है दुनिया में, जिसे यह कहा जाए कि एक तो यह होता है कि साइकोसिस एक आदमी को हुआ या घर के 2 अफराद को हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा मुल्क या पूरी दुनिया में अगर यह सिचुएशन हो जाए तो फिर यह बड़े ही खतरनाक सूरत हाल होती है। और ऐसी सूरत हाल में उसका यह कहना है कि कुछ लोग जो है वो इससे फायदा भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज्यादा ये बेचैनी और ये फैल जाए मामला, तो ये डॉक्टर रॉबर्ट मेलन का कहना है कि उनमें से अगर 1 या 2 या 3 लोग अगर उठ खड़े हों और ये कहें कि तुम्हारी इस उलझन का हल मेरे पास है, तो तमाम दुनिया के लोग उस पर यकीन कर लेंगे। चाहे ये देखे बगैर भी यकीन करते चले जाएंगे कि जो शहादत है वो कुछ और है, और उसके बाद फैलेगी एक फिजा खौफ की। आज हम खौफ की फिजा में हैं। अगर आप देखें कि ये फिजा जो 2019 से दिसंबर में चाइना से शुरू हुई थी और आज 2022 में हम मौजूद हैं, लेकिन खौफ की एक फिजा मौजूद है। हालांकि अभी भी कुछ बयानात आ रहे हैं हमारे जो सियासतदान हैं या साइंटिस्ट हैं, मसलन ये जो नया वायरस का जो ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बारे में ये आया है। कल भी परसों भी अखबारों में जो सियासी लीडर हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसमें ये बात जरूर है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। इसीलिए बर्तानिया में पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा केसेस थे एक दिन में। उन्होंने कहा ये तेजी से तो फैलता है, मगर उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन इतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। यानी लोग बहुत ज्यादा शदीद बीमार नहीं हो रहे और हॉस्पिटल्स में इसकी वजह से ज्यादा दाखिल जो नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। यानी खौफ की फिजा जो है कम इसलिए भी नहीं हो रही कि हमें पता चल गया है कि ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी हम वैसे ही खौफजदा हैं जैसे आज से 1 साल पहले थे। अब होता क्या है, जो मैंने सोचा कि ये जो
मास फॉर्मेशन साइकोसिस की इस्तिलाह आप सर्च जरूर करें गूगल पे, और आप देखें जो वेबसाइट्स खुलती है हजारों की तादाद में, नहीं तो 100 की तादाद में, और आप उसको पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं वैक्सीन के या बूस्टर के खिलाफ कतई तौर पर नहीं हूं। वैक्सीन जो है ये हमारे दिफा के लिए है, इम्यून सिस्टम के लिए है, हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा करने के लिए है कि अगर हमें वायरस का हमला होता है तो हम उसका से बचें, और हमें मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स जो है वो तो आए मगर हम खतरनाक बीमारियों का शिकार ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो। इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई है सबको, और बहुत सारी चीजों में लगती है, पोलियो के वैक्सीन लगते हैं, फ्लू का वैक्सीन लगता है, तो ये वायरस का वैक्सीन है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह मामला जरूर है कि गुज़िश्ता साल 2020 में बहुत बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट भी इवन थे हेल्थ के शोबे से, उन्होंने जो बयानात दिए, उन बयानात की रोशनी में लोगों का एतबार अब इन सियासतदानों से और हेल्थ वाले कुछ लोगों से उठ गया है। और इसकी वजह है इसलिए कि अगर किसी सियासतदान ने पिछले साल ये कहा था कि आप वैक्सीन लगाएं, आप हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, आपको वायरस नहीं लगेगा, ये बात गलत साबित हुई है। आज जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी वायरस हुआ है, जिनको वैक्सीन लगी है वो भी हॉस्पिटल में गए हैं। तो इस किस्म की चीजें हैं जिन पर हम आइंदा हफ्ते में पूरी बहस करेंगे कि किस सियासतदान ने किस तारीख को क्या जुमला कहा था जिसकी वजह से उनकी क्रेडिटेबिलिटी पर फर्क पड़ा है, या लोगों का एतबार अव्वल तो वैसे ही सियासतदानों पर कम था और खत्म हो गया है। ये जो मास फॉर्मेशन साइकोसिस है ये क्या होता है और ये क्यों होता है? ये होता है, इसमें एक लफ्ज है अंग्रेजी का कि डीकपल, यानी एक होता है ना कपल, यानी आप दो लोग साथ हैं अब नहीं है, यानी राब्ता नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त ये सूरत हाल है आज के दौर में, या 2019 से पहले भी अगर आप देखें कि लोग एक दूसरे से राब्ते में रहना कम होते चले गए। सोशल मीडिया आया, मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आ गया, जाहिर है अगर आप मुझे कुछ भी मालूम करना है, मैंने सीधा सर्च इंजन में गया और मैंने फाइंड आउट कर लिया। मैंने इस बात की जरूरत महसूस ही नहीं की कि मैं अपने दोस्त साबिर रजा को फोन करके पूछूं कि यार इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, मुझे नहीं। अब हर एक को जब खुद ही पता चल रहा है तो वो फोन के जो रवाबित थे वो कम होते चले गए, मैसेजेस कम होते चले गए, मुलाकातें कम होती चली गई, यानी हम एक दूसरे से राब्ते में नहीं रहे। जब इंसान दूसरों के साथ राब्ते बहुत ही कम कर देता है या खत्म कर देता है तो वो फिर लोनलीनेस का और एंजाइटी का शिकार होता है। और ये सूरत हाल आज पूरी दुनिया में है, और अमेरिका में सबसे ज्यादा है और यूरोप में उसके बाद। आप ये देखें कि वो मुमालिक जहां राब्ते बहुत कम है वहां खौफ ज्यादा है। आप कंपेयर करें, यूरोप और अमेरिका में राब्ते जो हैं वो कम है एक दूसरे से, लोगों के पड़ोसी को पता ही नहीं है उसका पड़ोसी कौन है और क्या करता है। ये तो उस वक्त पता चलता है जब कभी पुलिस वहां दरवाजे पर आए, या 3 दिनों के बाद पता चले कि ये बाहर नहीं निकला, पुलिस ने ताला तोड़ा, अंदर उसकी लाश पाई गई। इससे पहले पड़ोसी को पता ही नहीं होता। लेकिन जो हमारे एशियाई ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर राब्ते यूरोप अमेरिका के मुकाबले में अभी भी ज्यादा है। अभी भी लोग बहुत मिलते जुलते हैं और आपस में उनके राब्ते हैं, गो के पहले जैसे नहीं है लेकिन अभी भी है। इसलिए वहां आप देखेंगे इस वायरस का खौफ कम पाया जाता है यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि यानी वो सेंस खत्म हो जाता है, यानी किसी भी चीज को समझने की जो है ना सलाहियत वो खत्म हो जाती है, तब ये मास फॉर्मेशन साइकोसिस पूरी दुनिया में फैलता है। तीसरी चीज होती है कि हम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ज़हनी तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा जहन जो है वो इंतहाई बेचैनी की कैफियत में चला जाता है। और उसके बाद एंजाइटी फ्लोट करती है हुजूम के अंदर। एक तो होती है एंजाइटी सिंगल आदमी को होती है, पूरे घर में एक शख्स को एंजाइटी है तो लोग उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं तदबीर, लेकिन पूरे घर को एंजाइटी अगर हो तो फिर क्या होगा? पूरे मोहल्ले को, शहर को, मुल्क को, पूरी दुनिया को एंजाइटी हो। अब आज की तारीख में भी आप देखें कि डेटा, साइंटिफिक डेटा ये बता रहा है
کہ اومیکرون جو ہے وہ پھیلتا تو بہت تیزی سے ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا پہلے ویریئنٹ جو تھے ڈیلٹا یا اس سے پہلے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا خوف نہیں کم ہو رہا یا ہماری بے چینی ختم نہیں ہو رہی. تو یہ اس وقت ایسی صورتحال ہے جس میں صرف ایک جملہ جو کہ میں بھی آپ کو کہوں گا اور مجھ سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. اس نے کس سینس میں کہا تھا یہ مجھے نہیں معلوم، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ کبھی لکھی گئی اور لکھی جائے گی تو یہ جملہ سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا کہ اس دور میں جب یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، اس وبا کے دور میں جو سب سے زیادہ آسان چیز تھی اور جو سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی تھی وہ یہی جملہ تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کو اینزائٹی نہیں ہوگی، آپ کو لونلینس نہیں ہوگا اور آپ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں گے.